Hello students and welcome back again to our video tutorial. And today in this class we are going to continue our chapter breathing and exchange of gases. So in our previous two lectures we have discussed about the general features of respiration and breathing, and I have told you about the structure of larynx. That larynx is a cartilaginous structure which is made up of total of 9 cartilage. 3 cartilage are unpaired, 3 cartilage are paired. There are certain cartilage which are visible from the posterior side and other which are visible from the anterior side. The largest cartilage of larynx is thyroid cartilage, which under the influence of androgens keep on growing, and in case of males is referred as to Adam's apple, or let's say there is a prominence of skin which is present here, right? Then in the larynx are present elastic cords made up of yellow fiber lined by non-keratinized stratified epithelium, and we call them vocal cord. There are two vocal cord. True vocal cords are involved in the production of sound, which is generally due to expiration of gas, and when expiration of air, when air hit, these vocal cord vibrate and sound is produced. Today we are going to start with trachea. Then trachea, after trachea we will be talking about the branching of tracheal tube, which we call bronchi, and then bronchioles. I will be telling you again about conducting and respiratory zone, and then we are going to discuss about lungs in the first part. Then there would be a mechanism of breathing, and because really starting the mechanism of breathing we have to understand about the thoracic cage, that what are the position of ribs, where clavicle are present and where diaphragm is present, and how contraction and expansion of thoracic cavity can occur, which would be leading to the contraction and expansion of pulmonary cavity. So the lecture would start from trachea. Trachea, to be very exact, is a tube which is about 10 to 12 centimeter long, 10 to 12 centimeter long tube, which start from the just below the larynx and is continued up to mid thoracic cavity, lying in mid thoracic cavity. Clear? Trachea is lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium. Pseudostratified ciliated columnar epithelium, along with certain glandular cell and mucus gland. So let's say this here is a tube, and that tube is about 10 to 12 centimeter long. On the top of tube is a box which is made up of cartilage. Let's call that box as larynx, and over larynx there is an opening which we call glottis. To be exact, glottis is a part of larynx which is the opening of trachea. Glottis is a part of larynx which is the opening of trachea. So this is glottis here, and that is covered by a leaf-like elastic cartilage flap, epiglottis. Then trachea. Trachea is lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium. The cilia help in the propelling of particle, first thing to remember here, and second, there are certain goblet cells, certain mucus gland which has been continuously secreting mucus. So whatever dust particle reaches there, they bypass your nasal cavity. These dust particle has been entrapped in mucus, and with the action of cilia they have been thrown outside. Is that clear up to here? Next, this trachea on its dorsal side is having complete ring of cartilage like this, and these rings of cartilage are incomplete dorsally and complete ventrally. So I will be writing that statement, that trachea is surrounded by
16 to 20 incomplete cartilage ring, and it's important to remember that these rings are incomplete dorsally. Incomplete dorsally. And these rings are made up of hyaline cartilage. These rings are made up of hyaline cartilage. So what concept we have learned yesterday? When we move downward from this side to that side, elastic cartilage is changed, or upper structures are made up of elastic cartilage and lower structures are made up of hyaline cartilage. So I had told you that this epiglottis is elastic cartilage, then thyroid here is hyaline cartilage, cricoid here is hyaline cartilage. On the back side, arytenoid, lower part hyaline cartilage, upper part elastic cartilage. Then corniculate and cuneiform made up of elastic cartilage. So these rings are also made up of elastic cartilage. Now at the level of fifth thoracic vertebra, see, in the neck is cervical vertebra and below the neck is thoracic vertebra. And at level of fifth thoracic vertebra, again this position is important to remember. Trachea divides as primary bronchi and enter lungs before entering our lungs. You got my point? तो जब हम lungs बनाएंगे तो we will be completing that diagram. So at the level of fifth thoracic vertebra ये divide कर गए, और जो फर्स्ट डिवीजन करके बनता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई इज प्लूरल, ब्रोंकस इज सिंगुलर. तो ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंकाई, लेट्स से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड होके बनाएंगे बच्चों ये आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई जिनको लोबर ब्रोंकाई कहते हैं, फिर डिवाइड होके बनाएंगे टर्शियरी ब्रोंकाई जिनको सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं. सो दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, दैट इज टर्शियरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई आल्सो नोन एज lobar bronchi and tertiary bronchi is also known as segmental bronchi. फिर जो bronchi है, अच्छा ये जो cartilaginous rings हैं, they do not end here only and these are continuous over bronchi as well, or primary bronchi, over secondary bronchi and over tertiary bronchi. Bronchi further divide करते हैं और वो बना लेते हैं bronchioles. And there will be many divisions of bronchioles here. तो इनको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं कह रहे हैं. तो जैसे जैसे ट्रैकिया अंदर जाके डिवाइड करता रहेगा, पहला चीज उसका जो डायमीटर है, जो ल्यूमन है, वो कम होता चला जाएगा. और टर्शियरी ब्रोंकाई के साथ साथ जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी होती है आपके पास कार्टिलेजिनस रिंग्स, और फिर बाकी की जो ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है. देन दे कम से ब्रोंकाई, लेट्स से इसके लिए वर्ड यूज कर दिया हमने टर्मिनल ब्रोंकाई. ये पहले भी मैं बता चुका हूं इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. दिस इज टर्मिनल ब्रोंकियोल, नॉट ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल. टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद बच्चे जो बनेगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स की जो ब्रांचिंग होगी, देयर इज मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. उसके बाद ये स्ट्रेट डक्ट आ जाएगा, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एल्वुलर डक्ट. जो डक्ट है वो जाके आगे कैविटीज में ओपन होगा. लेट्स से ये एट्रिया है, आगे जाके कैविटी सैक के अंदर ओपन होगी. लेट्स से ये सैक है, और ये जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ये एल्वोलाई है. तो पूरा अगर मैं रेस्पिरेटरी ट्री डिफाइन करूं, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री इज ट्रैकिया हेयर. Trachea divide into bronchi, bronchi divide into bronchioles. Important thing to remember कि सारे bronchi और initial bronchiole में cartilaginous ring होती है. फिर जो bronchiole है terminal bronchiole, यहाँ पर ये respiratory bronchiole, branches of respiratory bronchiole, alveolar duct, atria
और एट्रियम कह दो इसको, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से शुरू होता है और इस रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर एयर एक्सचेंज होगा। जो भी हमारा कंडक्टिंग रीजन है अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उनके अंदर एयर एक्सचेंज नहीं होता है, और जो भी इस रीजन में एयर फिल्ड रहती है उसको ही को बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, और डेड स्पेस वॉल्यूम का वैल्यू भी होता है 150 ml। आगे वॉल्यूम्स वगैरह में वो मेंशन कर दूंगा। So what I just told you, I told you that trachea divides as primary bronchi, secondary bronchi and tertiary bronchi. They further divide as bronchiole. All the bronchi and initial bronchiole are having cartilaginous ring. Up to terminal bronchiole, there is no exchange of air, despite of the fact a lot of blood vessels are covering them. The air exchange starts with respiratory bronchiole and then alveolar duct, atria, alveolar sac and alveoli. ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब हम बना लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, और लेट मी टेल यू अबाउट लंग्स नाउ। तो ट्रैकिया के बाद आपके ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वुलर सिस्टम इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो पार्ट होगा दैट वुड बी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लंग्स नाउ, और लंग्स के अंदर एल्वोलाई वगैरह को डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल कि भाई एल्वोलाई किस किस से लाइन होती है, क्या क्या स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी है उसको लेकर। जब हम लंग्स की बात करते हैं, सी पल्मोनरी वर्ड इज कंसर्न विद लंग्स, और जो पल्मोन होता है, पल्मोन इज द नेम ऑफ ए सिंगल लंग। तो जब हम लंग्स को नाम देंगे, जैसे आप किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं रेनल, लिवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हेपेटिक, हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, और ब्रेन के लिए वर्ड यूज करते हैं सेरिब्रल, ऐसे ही लंग्स के लिए वर्ड यूज करेंगे पल्मोन। तो ह्यूमन लंग्स, और लेट्स कॉल देम पल्मोन। जो ह्यूमन लंग्स होते हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ह्यूमन के जो लंग्स हैं दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, ये याद रखेंगे। उनके अंदर कोई सेंट्रल कैविटी वगैरह नहीं होती है, नो सेंट्रल कैविटी। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो लंग्स हैं वो आपका स्लाइटली पिंकिश होते हैं, और जैसे जैसे आप एयर इनहेल करते जा रहे हो खूब सारा डस्ट पार्टिकल लंग्स में पहुंच गए और डार्क होने शुरू हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जहां आप रह रहे हैं, ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है या कम पॉल्यूटेड एरिया है, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिट ऑफ इंडिविजुअल, आइदर ही इज एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर, तो लंग्स का कलर जो है वो डार्क होता चला जाता है। ठीक है, तो पेयर्ड एंड स्पॉन्जी लंग्स होते हैं। जो लोकेशन होते हैं दे आर सिचुएटेड इन thoracic cavity above diaphragm, above diaphragm। तो डायफ्राम के नीचे आपका स्टमक और लीवर हो गया, लेफ्ट साइड पे स्टमक और राइट साइड पर लीवर, और डायफ्राम के ऊपर हो गए लंग्स। ठीक है बच्चों, देन अगर मैं यहां पर पहले डायग्राम ही बना देता हूं, फिर और डाटा उनका वेट वगैरह, लोब्यूल्स वगैरह सब डिस्कस कर दूंगा। लेट्स से आपके पास ये डायफ्राम है, और डायफ्राम को जैसे हम जानते हैं कि आपके पास एक पार्टीशन है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है। मैमल्स के अलावा डायफ्राम जो है आपका इन केस ऑफ क्रोकोडाइल भी होता है। लंग्स पेयर्ड स्ट्रक्चर है। जो लेफ्ट लंग होता है वो लेंथ में थोड़ा, इट इज, पहले राइट लंग बता देता हूं। ठीक है, दिस साइड वुड बी द राइट साइड एंड दैट साइड वुड बी द लेफ्ट साइड। जो आपका राइट लंग है वो लेंथ में थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट होता है। द रीजन बीइंग कि राइट साइड पर होता है हमारे पास लीवर, तो लीवर की पोजीशन की वजह से जो राइट का लंग है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, लेंथ छोटी हो जाती है, और किडनी जो है वो थोड़ा नीचे हो जाती है। ये है आपके पास लेफ्ट लंग, और जो लेफ्ट लंग होता है उसका लेंथ रिलेटिवली ज्यादा होता है देन राइट लंग, स्लाइटली लॉन्गर, बट दैट इज नॉट दैट मच ब्रॉडर, दैट इज नैरोअर देन राइट लंग। तो नैरो और लॉन्गर लंग इज लेफ्ट वन एंड ब्रॉड एंड शॉर्टर लंग इज राइट लंग। हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस कवरिंग से कवर्ड रहते हैं, और उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल बॉक्स। तो प्लूरा जो वर्ड है वो एक्चुअली मेम्ब्रेन के लिए ही आता है।
तो मैं एक डबल सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ, और जो डबल सैक लाइक स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज करेंगे बेटा पैराइटल प्ल्यूरा, और इनर मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज करेंगे विसरल प्ल्यूरा। तो हमारी जो लंग्स है प्ल्यूरल बैग में है, और दोनों जो लंग होते हैं वो बाई वॉल्ड होते हैं, उसके पास प्ल्यूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। जो ये प्ल्यूरल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी ड्राइव होती है, उनका ओरिजिन होता है फ्रॉम मीजोडर्म, और जो पूरा लंग है वो ड्राइव होता है फ्रॉम एक्टोडर्म। तो प्ल्यूरल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, दिस हियर इज पैराइटल प्ल्यूरा, parietal pleura, and this here is visceral pleura, pleural membrane। और जो pleural membrane है दे बोथ आर mesodermal in origin। तो एक कैविटी आ जाती है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, इसको बोलेंगे बेटा प्ल्यूरल कैविटी। और आप प्ल्यूरल कैविटी को गौर से देखें, a cavity which is lined by mesoderm, which is dried by mesoderm, इस कैविटी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इट्स ए ट्रू सिलोम। इवन प्ल्यूरल कैविटी इज ए ट्रू सिलोम। तो जो आउटर प्ल्यूरा है वो आपका पेरिटोनियम के साथ अटैच रहेगा, और इनर प्ल्यूरा जो है वो आपका लंग के टिश्यूज के साथ अटैच रहेगा। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है कैविटी के अंदर, और इस फ्लूइड को बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। और जो प्ल्यूरल फ्लूइड है वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है जब आपके लंग्स एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेजर फंक्शन ऑफ प्ल्यूरल फ्लूइड, इट प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो नेचर इज सो वाइज, these are the structures which has been expanding and contracting all the time, and nature have made a cavity over it which is having a fluid, and that fluid is not allowing the friction. In certain bacterial infection, this fluid can get inflamed, or pleural cavity can get inflamed, and that condition is known as pleural effusion disease or pleurisy, and patient is having painful breathing. If there is a friction in the pleural cavity during the expansion and contraction of lungs, that would cause pain. तो पेनफुल ब्रीदिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं डिसोपनिया। प्लूरेसी और प्ल्यूरल इफ्यूजन डिजीज, इसको पीडी भी कह देते हैं। प्ल्यूरल इफ्यूजन डिजीज is due to inflammation in pleural cavity, is due to inflammation in pleural cavity, और इन्फ्लेमेशन का मेजर सोर्स होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड दैट कैन रिजल्ट इन डिसोपनिया और पेनफुल ब्रीदिंग। तो हमारे जो दोनों लंग्स हैं दे आर कंटेन्ड इन द कैविटी, दैट कैविटी इज प्ल्यूरल कैविटी। हमारे जो दोनों लंग्स हैं दे आर कवर्ड बाय टू फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन। उन फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्ल्यूरल मेम्ब्रेन्स। दोनों फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन के बीच में जो ट्रू सिलोम या कैविटी आती है उसको बोलते हैं प्ल्यूरल कैविटी। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड, दैट इज जनरली सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड में वाटर और सीन प्रोटीन रहेगा। देन उसका काम होता है नॉर्मल मीन्स आई मीन टू से कि जब भी कभी लंग एक्सपेंड कर रहे हैं या लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रिक्शन नहीं होने देता, नॉर्मल स्लीपिंग होने के लिए होता है फ्लूइड, ठीक है। और अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो प्लेसी हो जाता है। इतना समझ में आया। देन दोनों लंग्स के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं बेटे मीडिया स्ट्रीनम। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मीडिया स्ट्रीनम। दिस हेयर इज डायफ्राम, दिस इज राइट लंग एंड दैट इज लेफ्ट लंग। राइट लंग के लेफ्ट लंग जो होते हैं उसके अंदर दो लोब होते हैं। एक फिशर होता है जो लंग को डिवाइड कर देता है इनटू टू लोब्स। ये हो गया आपका सुपीरियर लोब और एंटीरियर लोब,
और ये हो गया आपका इंफीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो दिस फिशर इज ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। तो अगर सवाल पूछा जाता है, अब ये जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर एक नॉच होता है, और उस नॉच के अंदर टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, आपका पंप सिचुएटेड होता है। एंड व्हाट इज योर पंप? वी कॉल दैट हार्ट हियर। तो हमारा जो हार्ट होता है इट इज सिचुएटेड इन कार्डियक नोच एंड इट हैज बीन स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। दिस नॉच हियर इज कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच कौन से लंग में होती है? आंसर इज लेफ्ट लंग। कौन से लोब के अंदर होती है? तो इंफीरियर आंसर नहीं करना, सुपीरियर लोब के अंदर होती है। देन यहां पर जो राइट लंग होता है उसके अंदर दो फिशर होते हैं। एक फिशर होगा जो आपका हॉरिजॉन्टल फिशर है और दूसरा फिशर होगा जो आपका ऑब्लिक फिशर है। तो हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर, ये डिवाइड कर देता है राइट लंग को इनटू 3 लोब्स। लेट्स से दिस इज सुपीरियर, दैट्स मिडिल लोब हियर एंड दिस इज इंफीरियर लोब। ठीक है बच्चों, हियर इज ट्रैकिया and at the level of 5th thoracic vertebra this trachea divides and enter lungs। और वो एरिया जहां से ये एंटर कर रहा है उसके लिए हाइलम ही वर्ड यूज करेंगे। किसी भी ऑर्गन में जहां से ट्यूब वगैरह, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो चाहे आपका ट्रैकिया हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइलम। सो प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेंगे, टर्शियरी ब्रोंकाई जैसे जैसे डिवाइड हो रहे हैं उनका ल्यूमन नैरो होता जा रहा है, डायमीटर कम हो रहा है। ब्रोंक्यूल्स, खूब सारे डिविजन्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स। लेट्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ गया, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आपके पास आ जाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एट्रिया, एल्वुलर डक्ट, एट्रिया, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई वुड बी देयर। ठीक है बच्चों, over trachea is sound box which we call larynx, and over larynx is the opening which we call glottis, and there is incomplete cartilaginous things which are present like this. There is incomplete cartilaginous things which are present like this. On the sides here, on the outer side of lungs, you will be having ribs. It simply represents that ribs are protecting our lungs from the lateral side. So let's say these are the ribs here and which are protecting our lungs from the lateral side. ठीक है? So we are having a pair of our lungs. Okay, just first draw it. And then I will be telling you about the other features. I will be telling you about the other features कि और क्या क्या होता है। अभी हमें ना इसका वेट वगैरह पढ़ लेना है और इसके अंदर लोब्स और सेगमेंट्स के बारे में बता देना है। देन एक दो फीचर ऑफ लंग के, इसके अंदर मसल्स वगैरह नहीं होती है वो लिख लेंगे। तो जनरली जो थोरेसिक कैविटी होता है जब वो एक्सपैंड और एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका जो पल्मोनरी कैविटी उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, यू जस्ट ड्रॉ इट एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग the further things. All right, so I am taking out this part from here. और कुछ जर्मिनल टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो लंग्स पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पिंकिश देन व्हाइटिश, स्पॉन्जी होते हैं, सेंट्रल कैविटी नहीं होता, तो लेट मी कॉल इट spongy and solid, situated in the thoracic cavity above diaphragm. There are no muscles which are present in lungs. तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा होता है, प्लीज इसको समझें कि आपके पास ये कैविटी है और इसको बोल दिया आपने थोरेसिक कैविटी। अब जो थोरेसिक केज है वो इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा,
और जो यहाँ पर मसल्स होंगी, आई मीन टू से इंटरकोस्टल मसल, अभी थोड़ी सी केज में बताऊंगा, उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसके अंदर एक टाइटली पैक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी। तो अगर इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ये भी एक्सपेंड होगा, और इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी रिजल्ट इन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। इनके अंदर कोई मसल्स वगैरह नहीं होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, और जैसे जैसे बाहर स्पेस मिलेगा तो एक्सपेंड कर जाएंगे, और जैसे ही बाहर से प्रेशर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, देयर आर नो मसल्स प्रेजेंट इन अवर लंग्स। देन अगर मैं आपसे बताया कि भाई ये लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, कितना शॉर्ट होता है तकरीबन, राइट लंग इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लेफ्ट वन, राइट। बट जो आपके पास अगर मैं वेट वगैरह की बात करूं, हमारा जो राइट लंग होता है वो ब्रॉडर होता है, और लेफ्ट लंग जो है हमारा वो नैरोअर होता है। जो वेट होता है लंग्स का, राइट वन इज 625 ग्राम और लेफ्ट वन इज अबाउट 565 ग्राम। नहीं पूछा था वेट के बारे में। देन लंग्स अंदर डिवाइड होते हैं लोब्स में। लोब्स 3 होते हैं राइट के अंदर, 2 होते हैं लेफ्ट के अंदर, और लोब्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं सेगमेंट्स में। लोब्स फर्दर डिवाइड होते हैं लोब्यूल्स में, और लोब्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं सेगमेंट में। और ये भी आसान है याद रखना कि राइट के अंदर 10 सेगमेंट होते हैं और लेफ्ट के अंदर 8 सेगमेंट होते हैं। There are total of 10 segment in right lung and total of 8 segment in left lung. But I guess नीट लेवल पे ये सवाल ना पूछे जाए आपसे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया लंग्स का स्ट्रक्चर, and laterally they are supported by ribs. अब चलते हैं alveoli के पास। Now let me zoom out, let me take out one alveoli from here and let me tell you what are the specializations of alveoli. जब एल्वोलाई वगैरह को डिस्कस करेंगे तो जो एल्वोलाई है, टोटल नंबर ऑफ एल्वोलाई, डू यू नो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एल्वोलाई आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स? द टोटल नंबर इज अबाउट 300 million. As far as the number of alveoli concerned, everybody is a millionaire. So 300 million alveoli in both lungs, and अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं लंग का, तो अबाउट 70 to 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आता है। सारे एल्वोलाई को अगर अनरैप कर दो तो इतना सरफेस एरिया निकल के आएगा। तो अगर मैं एक एल्वोलाई को बना के दिखाऊं आपको, इफ आई ड्रॉ वन एल्वोलाई हियर, आपने ये पढ़ लिया है अपनी एनसीईआरटी वगैरह में, क्योंकि डाउट्स पूछे थे आप कि इरेगुलर वॉल होती है एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल होती है। तो लेट्स से दिस इज एन एल्वोलाई हियर, और जो एल्वोलाई होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये अंदर की तरफ बना होता है स्क्वेमस सेल से। सो एल्वोलाई ऑब्वियसली इट इज वेल अंडरस्टूड, जहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा वहां पे स्क्वेमस सेल्स आएंगे। तो जो एल्वोलर एपिथेलियम होता है वो बना होता है स्क्वेमस सेल से, और इन्हीं को बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। एल्वोलर एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स which we call pneumocyte. Outside these, there would be certain connective tissue as well, but I am not going about connective tissue right now. अब जो alveolar epithelium होती है, alveolar epithelium, इसमें 2 तरह की सेल होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो मेजॉरिटी ऑफ सेल है अबाउट 95% वो टाइप 1 है, और वो एक्सचेंज ऑफ एयर में इन्वॉल्व है। जब हम टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, एल्वोलर एपिथेलियम इज न्यूमोसाइट्स। तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, वो सिक्रेटरी इन फंक्शन होती हैं। दे आर मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच आर सिक्रेटरी इन फंक्शन, और वो सिक्रेट करती हैं बेटा लेसिथिन।
आपने पढ़ लिया होगा बायोमोलिक्यूल में लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड, और लेसिथिन जो होता है वो एक्ट करता है एज ए सर्फेक्टेंट। लेसिथिन एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट। तो जो एल्वोलाई होती है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एयर भरा होता है, दे आर एयर फिल्ड, और दोनों लंग्स में मिलाकर 300 मिलियन एल्वोलाई है, तो आप साइज भी समझ सकते हैं। तो जो टाइप 2 एपिथेलियम है वो एक सर्फेक्टेंट सिक्रेट करती है ऑन द इनर वॉल ऑफ एल्वोलाई, और ये जो सर्फेक्टेंट होता है ये वॉल ऑफ एल्वोलाई को स्टिक होने नहीं देता। आप इसको ऐसे समझें कि बिफोर द बर्थ हमारे लंग्स वगैरह एक्टिवेट नहीं होते हैं, एंड आफ्टर द बर्थ विद द फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी एयर अंदर जाएगा और लंग्स एक्सपेंड करेंगे। तो अगर वॉल ऑफ एल्वोलाई आपस में स्टिक हो गई है तो एयर एक्सपेंशन के बाद शायद वो अलग ना हो पाए, एयर एंटर करने के बाद वो अलग ना हो पाए और डिस्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स हो जाए। तो जो लेसिथिन होता है, नेचर ने क्या किया, जस्ट बिफोर द बर्थ कुछ सिक्रेटरी सेल बना दी और वो एक सर्फेक्टेंट बना रही है, और सर्फेक्टेंट इन ये बैलून है, और बैलून के अंदर ना आपने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, फॉस्फोलिपिड है तो एक लिपिड है, और वो जो ऑयल है वो दोनों वॉल और बैलून को स्टिक करने नहीं दे रहा है। यू गॉट माय पॉइंट। तो लेसिथिन का काम क्या होता है, एक्ट एज सर्फेक्टेंट एंड डज नॉट अलाउज वॉल ऑफ एल्वोलाई टू स्टिक टुगेदर। तो अगर लैक ऑफ सर्फेक्टेंट है तो एल्वोलाई वगैरह कोलैप्स कर जाएंगे। तो अच्छा इसकी भी बात बताओ, अगर मैं इन सेल्स को और माइक्रोस्कोपिकली देखूं तो जो स्क्वैमस सेल होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ एयर होता है वहां पे छोटे छोटे पोर होते हैं, एंड दैट इज फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ एयर, इनको बोलते हैं पोर ऑफ कुन। लिबर कुन याद है? चलो, he is someone else, he is not liver कुन। तो पोर ऑफ कुन क्या होते हैं? These are the small pores which are present between the nearby or adjacent squamous epithelial cell of the alveoli। अब जो एल्वोलाई होते हैं they are richly supplied with blood vessel, all the alveoli are richly supplied with blood vessel like this। So from these alveoli obviously blood vessel के अंदर भी blood जो कैपिलरीज होंगी, to be exact is blood capillaries, और इनको हम बोलते हैं एल्वुलर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो पूरे एल्वोलाई से क्यों 95% ऑफ सेल कैसी हैं? टाइप 1 एक्सचेंज ऑफ एयर के लिए यूज हो रही है। पूरे एल्वोलाई से एक्सचेंज ऑफ एयर होता रहता है। यू गॉट माय पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी गोइंग दिस साइड एंड ऑक्सीजन वुड बी गोइंग दिस साइड। तो एल्वोलाई आर द मेजर साइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ एयर, और इनको मिनिएचर लंग भी कहते हैं। छोटा लंग और मिनिएचर लंग इज फॉर एल्वोलाई। इज दैट क्लियर? देन एल्वोलाई के अंदर there are certain macrophages which are also present, and macrophage of alveoli are referred as to dust cell। जो लिवर के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं उनको बोलते हैं कफर सेल, ऐसे ही जो लंग्स के मैक्रोफेज होते हैं उनको बोलते हैं डस्ट सेल। तो alveoli is the no doubt air exchange is also taking place, some air exchange is also taking place in this would be alveolar sac, then atria, then alveolar duct. Air exchange also occurs here, but most of the air exchange occurs in alveoli, the reason being they are well supplied with the blood vessels। तो alveoli are irregularly walled sac like structure which are well supplied with blood capillaries। इतना समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में। फोर स्पेशलाइजेशन बता दो इसका, इतना काफी है, दैट इज इनफ। एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है अबाउट 104 mm of Hg, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है अबाउट 40 mm of Hg। खैर ये आगे चल के पढ़ लेंगे, ठीक है। Here we have completed about the structure of human respiratory system। Now अभी पढ़ लेते हैं thoracic cage, और thoracic cage के बाद we are going to learn about different muscles which are making different structures which are going to make our thoracic cage, and what will be the changes when there is contraction and relaxation in these muscles। ठीक है बेटा, पहले पढ़ लेते हैं अबाउट thoracic cage, और फिर शुरू करते हैं मैकेनिज्म ब्रीदिंग के बारे में।
अगर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो आप स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में भी क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है, राइट। एक्चुअली ब्रीदिंग इज स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में वो बताऊंगा आपको। फर्स्ट थोरेसिक केज। अब मैं ना एक साइड व्यू बना रहा हूं, ये इंडिविजुअल है हमारे पास और इसका ये फ्रंट साइड है, और फ्रंट साइड पे जो बोन होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टर्नम। व्हेन आई से फ्रंट साइड आई मीन टू से स्टर्नम, वेंट्रल साइड। और ये इस इंडिविजुअल का बैक साइड है, और यहां पे जो यहां पे जो बोन होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। एंटीरियर साइड पर वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड। एंटीरियर साइड पर यहां पर है नेक एंड क्लेविकल बोन, और पोस्टीरियर साइड पर यहां पर है डायफ्राम। जस्ट इमेजिन मी एज दिस individual and you are looking me like this. This is the anterior side and these are the beauty bones of clavicle bone and neck. This here is thoracic cavity. So on the posterior side is diaphragm. This is the ventral part, sternum, and the back part, vertebral column. And on the lateral side there would be ribs. So a total of 12 pair of ribs are there. I am not going to teach about floating ribs and that vertebro-sternal ribs and different vertebro-chondral ribs. I am just telling you these are the ribs which at one side is attached to sternum and at other side is attached to vertebral column. So obviously the condition is like this. There is one rib which is going from this side and other rib which is going from this side. So there is one ribs, there are certain ribs which are going from this side and other ribs which are going from this side. अगर मैं ये आगे डिस्कस करूं, लेट्स से ये जो आगे है ये है मेरे पास स्टर्नम, और जो पीछे ये है, जो आगे है ब्लू में वो स्टर्नम है, पीछे वर्टिबल कॉलम है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। प्लीज लुक एट हियर, स्टर्नम वर्टिबल कॉलम, रिब्स इस तरफ भी हैं और रिब्स इस तरफ भी हैं। तो रिब्स एक तरफ अटैच होंगे स्टर्नम की तरफ और दूसरी तरफ अटैच होंगे वर्टिबल कॉलम की तरफ, और बीच में जो कैविटी बन गई ये क्या है आपका थोरेसिक केज। दिस कैविटी इज थोरेसिक केज। इसके अंदर थोरेसिक कैविटी होगा, उसके अंदर पल्मोनरी कैविटी होगा, वहां पे हमारे लंग्स वगैरह होंगे। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं बच्चों, एंटीरियर इज नेक एंड क्लेविकल, पोस्टीरियर इज डायफ्राम, वेंट्रल दो चीज आती है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम आएंगे और रिब्स आएंगे, स्टर्नम एंड रिब्स, कि रिब्स वेंट्रली भी प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि यहां पे अटैच हो रहे हैं। डोर्सल वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स, and on the lateral side there would be only and only ribs there. On the both side of both lateral side there would be only ribs. अब जो दो रिब्स के बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। रिब्स के लिए वर्ड जो कोस्टा वर्ड है वो रिब्स के लिए होता है, एनाटॉमी में याद रख लेना, कोस्टल बोन रिब्स बोन। दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, और उनमें जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। So if I make certain muscles here, let's say there are certain muscles which are between the ribs. So these here are intercostal muscle. तो अगर आपने ये रिब्स आपने इमेजिन किए, इनके बीच में जो मसल्स आ रही हैं ये कौन सी है? दिस मसल हियर इज इंटरकोस्टल मसल। कुछ होंगे बेटा जो बाहर की साइड होगा और कुछ होंगे मसल जो अंदर की साइड होंगे। समझ रहे आप? एक कैविटी में कुछ मसल्स होंगे जो बाहर की साइड, उनको जो है जो मसल फाइबर है लोकेटेड एक्सटर्नली, और कुछ मसल फाइबर होंगे विच आर लोकेटेड इंटरनली। तो ये ग्रीन में मैंने आपको दिखा दिए बाहर वाले एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स। इस बात को समझना, इनको बोलते हैं EICM। ये रिब्स हैं, कुछ मसल फाइबर जो इस साइड है
और कुछ मसल फाइबर जो इस साइड है। रिब्स में अंदर की साइड देखोगे तो कैविटी तो वो इंटरनल हो गए, और बाहर की साइड देखोगे तो एक्सटर्नल हो गए। तो कुछ मसल फाइबर्स बाहर की साइड और कुछ मसल फाइबर अंदर की साइड। जो इनर साइड वाले हैं, लेट्स से आई एम गिविंग देम अ डिफरेंट कलर, दीज आर द वन विच आर टुवर्ड्स द इनर साइड इन द ब्लैक, और ये हो जाएंगे आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। So there are two type of coastal muscles. One is internal intercostal muscle, internal intercostal muscle, and external intercostal muscle. See, ये केज है और इस पिंजरे के अंदर ये केज है और इस पिंजरे के अंदर ही पूरा थोरेसिक कैविटी, ऐसे याद रख लेंगे। नीचे क्या है केज के? इस केज के नीचे डायफ्राम, इस केज के ऊपर क्लेविकल और नेक, इस केज के सामने साइड स्टर्नम है और स्टर्नम पे ये अटैच है रिब्स। तो स्टर्नम एंड रिब्स आर प्रेजेंट वेंट्रली। ये केज के पीछे की साइड वर्टिबल कॉलम, यहाँ भी अटैच है रिब्स, तो पीछे की साइड डोर्सल वर्टिबल कॉलम एंड रिब्स, एंड ऑन द लेटरल साइड आर प्रेजेंट रिब्स हियर। और दो रिब्स के बीच में जो स्पेस हुआ ये इंटरकोस्टल स्पेस, और जो बाहर की तरफ मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल, और जो अंदर की तरफ मसल्स है वो इंटर इंटरकोस्टल मसल। दो there is a cage here, and in this cage is lungs, and between your lungs is your heart. तो एक बड़ा ही अच्छा saying है that heart is a wild creature, that's why ribs are the cage. समझने की कोशिश ना करें आप। तो बच्चों इसको मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो रिब्स हैं वो सामने की साइड और ऊपर की साइड शिफ्ट होते हैं। जब एक्सटर्नल, इनका पोजीशन कुछ ऐसा है, जब तक आपके पास हाथ में रिब्स नहीं होंगे, मसल फाइबर नहीं देखोगे, तो शायद ये समझ ना पाओगे आगे कैसी तरफ आ रहे हैं। तो फॉर द मीन टाइम ये याद रख लो, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, तो रिब्स आउटसाइड जाते हैं और ऊपर की साइड जाते हैं। तो मेनली आपका जो चेस्ट है, स्टर्नम ऊपर की साइड और आउटसाइड जाएगा। जो चेस्ट है वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन बाहर की साइड और ऊपर की साइड आना शुरू हो जाता है। तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो किस एक्सिस में बढ़ेगा? आई विल से द वॉल्यूम वुड बी इंक्रीजिंग इन दिस एक्सिस, एंड दैट इज योर डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है बच्चों। तो विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, द स्टर्नम इज मूविंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, and that result in the increase of volume in dorsoventral axis. और जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा नीचे की तरफ आएगा। अब वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ा? सर इस एक्सिस में बढ़ेगा। डायफ्राम नीचे की तरफ आ गया तो कैविटी का वॉल्यूम इस एक्सिस में बढ़ेगा, और दैट इज योर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जब हम पढ़ेंगे डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन, तो समझ जाना वॉल्यूम, डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वॉल्यूम इस एक्सिस में बढ़ रहा है। जब आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वॉल्यूम इस एक्सिस में बढ़ रहा है। तो ये एक्सिस डोर्सोवेंट्रल और ये एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो खींच लेते हैं स्टर्नम को अपनी तरफ, तो स्टर्नम जो है थोड़ा नीचे की तरफ और अंदर की तरफ चला जाता है। एक्सपीरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे, किस एक्सपीरेशन में होंगे? फोर्सफुल एक्सपीरेशन में, जो मैकेनिज्म ब्रीदिंग में बताने वाला हूँ। तो रिब केज का अरेंजमेंट समझ में आया कि रिब केज का अरेंजमेंट कैसा होता है। वन मोर रिवीजन, वेंट्रल साइड sternum and ribs, dorsal side vertebral column and ribs, lateral side only ribs, anterior side clavicle and neck, and posterior side is diaphragm. ठीक है, ऑल राइट। अब शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे यहीं पर। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट, ये वाला पार्ट कर देता हूँ अब, कि व्हाट वुड बी द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट वुड बी द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, कई बार ना आपको इसको अरेंज करने के लिए आ जाएगा, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, फिर मैकेनिज्म ब्रीदिंग बता दूंगा, उसके बाद वॉल्यूम एंड ट्रांसपोर्टेशन, वॉल्यूम एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन बचेगा मेजर। सबसे पहले स्टेप होता है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग से आप इनहेल कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है डिफ्यूजन एट एल्वियोलर लेवल, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एल्वियोलर लेवल इसी को बोला था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर तीसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कि जो भी एयर ऑक्सीजन जो भी डिफ्यूज होकर ब्लड में आया एल्वोलाई के पास, एल्वोलाई लेवल पर जो भी ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आया उसको ट्रांसपोर्ट करें आप दूसरे टिश्यूज तक, दूसरे टिश्यूज पे जाकर
डिफ्यूजन एट टिश्यू लेवल। और जब टिश्यू लेवल पर डिफ्यूजन होगा तो जो आपका ऑक्सीजन है वो टिश्यू के पास चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। सो देयर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। और फिफ्थ होगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और ब्रेक डाउन ऑफ फूड में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी। आर वी डन अप टू हियर? तो अभी हमने पढ़ लिया एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड थोरेसिक केज। अब एक छोटा सा टॉपिक और है ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वो पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है? सो डोंट माइंड अगर लेक्चर 5-10 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो वी आर लर्निंग समथिंग, देयर शुड बी नो कंजूसी इन लर्निंग। डन अप टू हियर? ऑल राइट। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर ना 2 प्रोसेस पढ़ेंगे हम, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। और मैं बताने वाला हूं कि जनरली किस टाइप का ब्रीदिंग होता है ह्यूमंस के अंदर और क्या क्या चेंजेस होते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, राइट? सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, breathing is a physical process which involves inspiration and expiration. Inspiration is an active process क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से होगा, और एक्सपिरेशन जो नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है, और जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों? अब जो फ्लो ऑफ एयर होता है ह्यूमंस के अंदर, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो कुछ ऐसे होता है। अब एटमॉस्फेयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है हाई, और जो आपके लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर है, जो पल्मोनरी एरिया में पार्शियल प्रेशर है, वो होता है लो। तो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर एयर एक्सचेंज हो रही है, फ्लो कर रही है, इसलिए हमारी जो ब्रीदिंग है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एयर को पुश करना पड़ता तो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग हो जाती। तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्यों कहते हैं ह्यूमन में? क्योंकि एयर एक हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर रीजन की तरफ आती है। आप इसको ऐसे समझें, अगर फ्लो के लंग्स की बात करें तो फ्लो के लंग्स में फोर्सफुली एयर को फिल करना पड़ता है, और फोर्सफुली फिल होगा तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर देंगे। तो उनका जो लंग्स होते हैं वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर पंप की तरह काम करते हैं, वो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग है। हमारे जो लंग्स है वो एयर सक कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, क्योंकि लंग्स का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है। वो कैसे कम है अभी पढ़ लेंगे वो, ठीक है? तो एक सवाल पूछा जाता है कि ह्यूमन एक ही टाइम पर ब्रीथ भी कर सकता है और खाना भी खा सकता है, वी कैन ईट एंड ब्रीथ एट द सेम टाइम, ड्यू टू विच थिंग? आंसर वुड बी नेगेटिव पार्शियल प्रेशर ब्रीदिंग। अगर पॉजिटिव पार्शियल प्रेशर ब्रीदिंग होता, फोर्सफुली हम कर रहे होते, तो आप जो वॉलंटरी स्वेलिंग कर रहे हैं आप समझ ही ना पाते कि फोर्स करके किधर देना है फूड, ठीक है? तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्यों होता है? बिकॉज वी आर हैविंग नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्यों होता है? क्योंकि पल्मोनरी कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, तभी एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जाता है पल्मोनरी कैविटी में, ठीक है बेटा? नाउ अब इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है? तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हो गया क्लियर। इंस्पिरेशन के अंदर क्या क्या होता है? आपके पास ये आपका थोरेसिक केज है, तो ये हो गया आपका डायफ्राम, ये हो गया आपका स्टर्नम, और स्टर्नम के साथ साथ मैं रिब्स भी शो कर देता हूं। लेट्स से दीज आर द रिब्स हियर, और ये हो गया आपका वर्टिबल कॉलम, ठीक है बच्चे? और इधर हो गया आपका नेक और क्लेविकल। सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग का मैं बात करूं, नॉर्मल ब्रीदिंग में देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा
it would become flat, तो it would becoming like this. Contraction of diaphragm की वजह से volume of pulmonary cavity increases in which axis? In anterior posterior axis. Second, there is contraction of external intercostal muscles. So जब external intercostal muscle करेंगे तो lift the chest forward and upward. I mean to say the ribs and sternum would be moving ventrally and upwardly. इसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो किस एक्सिस में बढ़ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी इंक्रीजेस इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस. अब इसके अंदर जो एक कैविटी है बच्चे, वो है आपकी इट्स पल्मोनरी कैविटी और थोरेसिक कैविटी. इट शुड बी थोरेसिक कैविटी हियर. आई एम फर्स्ट टेलिंग अबाउट पल्मोनरी कैविटी. इट शुड बी थोरेसिक कैविटी हियर. तो थोरेसिक कैविटी के अंदर कैविटी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी, और पल्मोनरी कैविटी के अंदर स्पॉन्जी लंग्स हैं. तो अगर वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी में बढ़ा है तो जो भी थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है ऑन द प्लूरल मेम्ब्रेन वो कम हो जाएगा. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो थोरेसिक कैविटी जो प्रेशर दे रही थी प्लूरल मेम्ब्रेन पर वो कम हो जाएगा, और जो भी प्लूरल कैविटी वो भी एक्सपेंड करेगी, और प्लूरल कैविटी एक्सपेंड करेगी तो लंग्स तो स्पॉन्जी वो एक्सपेंड कर जाएंगे. तो एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी वुड अफेक्ट पल्मोनरी कैविटी. या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, थोरेसिक कैविटी में जो चेंज होगा वैसे ही चेंज पल्मोनरी कैविटी में होगा. तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी as well as pulmonary cavity decreases, volume increases, pressure decreases. तो अंदर पल्मोनरी कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर मूव्स टू एन एरिया ऑफ लो पार्शियल प्रेशर. That is how we do इंस्पिरेशन. जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो आप चेक भी कर सकते हैं आपके मूवमेंट ऑफ चेस्ट कैसे हो रहे हैं. ठीक है बेटा. जो इंस्पिरेशन होता है वो 2 सेकंड में कंप्लीट होता है, एक्सपिरेशन 3 सेकंड में कंप्लीट होता है. तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है आपका वो 14 to 18 टाइम्स पर मिनट हो जाता है. ये तो होगा नॉर्मल इंस्पिरेशन के बारे में. तो नॉर्मल इंस्पिरेशन क्यों एक्टिव प्रोसेस है? क्योंकि 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. कौन कौन सी? डायफ्राम और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और जब एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम बढ़ता है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में. वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. यहाँ के अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर आ जाएगी. ठीक है. नॉर्मल एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. इनफैक्ट जो नॉर्मल इंस्पिरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो सारी रिलैक्स हो जाती है. मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड इन नॉर्मल इंस्पिरेशन गेट रिलैक्स्ड, और वो रिलैक्स होंगी तो क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम. इट वुड चेंज द वॉल्यूम डायफ्राम. It would change the volume in which axis? Reduction of volume in anterior posterior axis, and relaxation of external intercostal muscle reduce the volume in dorsoventral axis. Volume decrease, pressure increase. Intra pulmonary or intrathoracic both pressure increases. So air from high pressure is diffused out, is pushed out
टूवर्ड्स लो प्रेशर। तो अगर आपका डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो बेटा ये क्या है आपका इंस्पिरेशन, और डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या है आपका एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में आपकी चेस्ट वगैरह कैसे हो जाएंगी, जो भी स्टर्नम इट हैज बीन कमिंग टू द नॉर्मल, इट इज नॉट एक्चुअली स्क्वीजिंग इनसाइड, इट इज कमिंग अगेन टू द नॉर्मल पोजीशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या होता है, डन। नॉर्मल इंस्पिरेशन क्यों एक्टिव है, नॉर्मल एक्सपिरेशन क्यों पैसिव है, ये क्लियर हो गया। फिर आता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन का कंसेप्ट। तो अगर ये डायग्राम आता है तो प्लीज एरो याद रखना, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो एक्सपिरेशन और एरो नीचे की तरफ है तो इंस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फोर्सफुल के बारे में। फोर्सफुल दोनों ही एक्टिव होते हैं, चाहे वो इंस्पिरेशन हो चाहे वो एक्सपिरेशन हो। जब भी आप एक डीप ब्रीथ ले रहे हैं तो एक्टिव प्रोसेस, और डीप एक्सहेल कर रहे हैं तो एक्टिव प्रोसेस। अगेन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में जो चेंजेस इन वॉल्यूम होगा, चेंजेस इन इंस्पिरेशन होगा, सेम होगा। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, मसल्स इन्वॉल्व इज स्कैलिन मसल्स ऑफ नेक। आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो यू feel certain stiffness in your neck region, and sternocleidomastoid muscle। देखो जो स्कैलिन मसल्स होती हैं वो नेक के पास है, राइट। स्कैलिन मसल्स आर प्रेजेंट इन नेक। जस्ट टेक ए डीप ब्रीथ, यू फील सर्टेन स्टिफनेस इन नेक देयर, राइट। एंड स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड क्या होती है, स्टर्नम से अटैच होनी शुरू होगी और स्टर्नम से सीधा जाएगा क्लेविकल तक। फ्रॉम स्टर्नम इट इज गोइंग टू क्लेविकल, एंड फ्रॉम क्लेविकल द फाइबर्स आर गोइंग टू द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन है, इसका मेस्टोइड प्रोसेस होगा, वहां तक जाएगा, तो नाम होता है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल। अब डीप ब्रीथ लेना चाहिए लो, तो मसल्स नेक के अंदर कुछ स्टिफनेस देखोगे एंड यू विल फाइंड सर्टेन स्टिफनेस देयर। तो दीज आर द मसल्स विच हैज बीन एनेबलिंग यू टू टेक फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर मसल्स ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन की बात करूं मैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आंसर होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स फोर्सफुल इंस्पिरेशन अकर, एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड ऑब्लिक abdominal muscles, due to contraction of these muscles forceful expiration occur। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो स्टर्नम को अंदर की तरफ खींच लेगा, और अंदर की तरफ खींचेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, तो प्रेशर बढ़ गया, एक्सपिरेशन होगा पहली चीज। जब ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो डायफ्राम को पुश करेंगे टुवर्ड्स अपसाइड, और टुवर्ड्स अपसाइड पुश हुआ है तो एंटीरियर पोस्टीरियर मसल्स, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर पल्मोनरी कैविटी में ज्यादा, बाहर कम, तो एयर वुड बी कमिंग आउट। तो जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं, ब्रीदिंग में दो प्रोसेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ अवर लेक्चर ऑफ अ चैप्टर, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं इन फोर्सफुल ब्रीदिंग एंड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, और कौन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कौन सा एक्टिव प्रोसेस है, कौन सा पैसिव प्रोसेस है। जब मेल्स की बात करते हैं बच्चों, तो मेल्स के अंदर 75% जो आपकी ब्रीदिंग है वो एब्डोमिनल होती है, और फीमेल्स के अंदर जो डोमिनेंट ब्रीदिंग होती है वो थोरेसिक होती है। इवन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर तो सारी की सारी ब्रीदिंग थोरेसिक होगी। जब मैं थोरेसिक ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं कि डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल का कितना मतलब इस वाले एक्सिस का कितना रोल है और इस वाले एक्सिस का कितना रोल है, एंड दिस हाउ आवर बॉडी इज डिजाइंड। So in case of male, breathing is abdominal predominantly, and in case of females, breathing is thoracic predominantly। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका ब्रीदिंग रेट भी बता दिया, टाइम बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। अब मैंने एक दो कंसेप्ट आपको और बताना चाहता हूं।
एक तो वो है कि जब आप रेस्ट कर रहे हो तो अपने सारे कॉन्शियस एफर्ट से किस चीज़ को मूव किए बिना ब्रीथ कर सकते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। और दूसरा कि हमारा जो एल्वोलाई होती है वो इतनी ब्रांच्ड होती है, और इस ब्रांच्ड नेटवर्क ऑफ एल्वोलाई से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एफिशिएंट होता है, उसकी एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट और बता देता हूँ, देन आई एम फिनिशिंग द लेक्चर। सो एक तो ना कुछ प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर लेता हूँ जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड है और अक्सर हम गलत कर देते हैं। सवाल ये बोला जाता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर खूब सारे एल्वोलाई फॉलोड बाय, एल्वोलाई में कहाँ से एयर आती है, एल्वुलर डक्ट से, और एल्वुलर डक्ट कहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ब्रोंक्यूल्स पर। तो जो एल्वोलाई है दे आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ एल्वुलर डक्ट एंड अ लॉट ऑफ ब्रोंक्यूल, एंड आई टोल्ड यू देयर इज सर्टेन एयर which has been filled in alveolar duct as well as bronchiole। ये चाहे आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, एयर इज फिल्ड देयर। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें एल्वोलाई सराउंडेड होता है विद एल्वुलर डक्ट एंड विच ओपन्स इनटू ब्रोंक्यूल, ये किस टाइप का वेंटिलेशन होता है, किस टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो आप याद रखना कि ये जो अरेंजमेंट है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन बनाता है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन कैसे बना देता है, क्योंकि हमेशा कुछ एयर एल्वुलर डक्ट और ब्रोंक्यूल में रहेगी ही रहेगी। हमेशा, मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा कुछ एयर एल्वुलर डक्ट और ब्रोंक्यूल में रहेगी ही रहेगी, जिसकी वजह से एल्वुलाई वगैरह कोलैप्स नहीं करते हैं। और जो एयर रह जाती है एल्वुलर डक्ट और ब्रोंक्यूल में, आई मीन टू से जो लंग्स के अंदर एयर है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कंडक्टिंग सिस्टम को डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। That amount of air which is left in the respiratory system in the lungs is referred as to residual volume। और residual volume कितना होता है, कम होता है। तो efficient system of ventilation with little residual volume। little residual volume मैंने इसलिए मेंशन किया है यहाँ पर कि लेट से मेरे पूरे लंग्स की जो एयर है, जब मैंने ब्रीद इन कर लिया है और ऊपर तक मेरे लंग्स भर गए हैं तो उसके अंदर 6 लीटर एयर आ रही है। उस 6 लीटर का इससे छठा पार्ट अबाउट 1100 to 1200 ml जो है वही रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। बाकी सारी की सारी अबाउट 4.8 लीटर में एक्सहेल भी कर सकता हूँ। यू गॉट माय पॉइंट। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसका वैल्यू कम होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो ममेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, टू बी स्पेसिफिक ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, पर जो ममेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है दैट इज हैविंग ए एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन बिकॉज इट इज हैविंग लिटिल रेजिडुअल वॉल्यूम। पहला तो ये। दूसरा एक और क्वेश्चन, एक और स्टेटमेंट आता है कि भाई योर कॉन्शियस एफर्ट आप कैसे इंस्पिरेशन या ब्रीद इन कर सकते हैं। तो अपने कॉन्शियस एफर्ट से मैं विदाउट इवन मूविंग माई चेस्ट आई कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो अगर आप चेस्ट मूव नहीं कर रहे हैं और तब भी ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, बोलना बंद करोगे तो शायद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो। तो जस्ट बाय मूविंग माई डायफ्राम, जस्ट बाय चेंजिंग माई वॉल्यूम इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, I can breathe in and breathe out. So just by moving my diaphragm and not moving my intercostal muscles, I can breathe in and breathe out. ये भी याद रखना। तो with all conscious effort, a person can breathe in and out just by moving diaphragm and not moving ribs at all। ठीक है, और नॉट मूविंग चेस्ट एट ऑल। तो ये 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको याद रखेंगे एक्चुअली। तो ये हो गया बच्चे आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज along with the exchange of gases with respect to their partial pressure at different sites, and what are the factors which has been affecting exchange of gases, solubility, thickness and all the thing.
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बता दूंगा, डिफ्यूजन कैपेसिटी भी बता दूंगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज के लेक्चर बचेंगे, ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड देन कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग एंड यूर disorders. So this is all for today. I wish you a very good day. I wish you a very good luck. I hope you enjoyed the class. Thank you. Class is dismissed.